Welcome back to the exercise number 4 of first lesson of Intermediate English Book 2. In this exercise, we are given 10 statements and we have to complete the statements by given options. First of all, we have got the first statement, that is little hands face difficulties in the season of. اصل میں اس اسٹیٹمنٹ میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ لٹل ہینڈس کس سیزن میں زیادہ تکلیف محسوس کرتا تھا. تو ہمیں پتہ ہے کہ لٹل ہینڈس جو ہے وہ سردیوں کی موسم میں زیادہ تکلیف محسوس کرتا تھا، کیونکہ سردیوں میں جو پھول ہیں اس کے وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے اور مارکیٹ بھی نہیں کرتے تھے، اور سخت سردیوں کی وجہ سے جو ہے اس کے پاس نہ تو پہننے کے لیے کوئی ڈھنگ کی چیز ہوتی تھی اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی اچھی چیز اس کے پاس میسر ہوتی تھی. تو اس وجہ سے ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے اس میں وہ ہے ونٹر. تو ونٹر کو ہی ہم ٹک کریں گے کیونکہ ہمارا درست جواب ہے ڈی. نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے ملر ڈیڈنٹ وانٹ ٹو انوائٹ ہینس ایٹ ہز ہوم ڈیورنگ ونٹر بیکاز ہی تھاٹ دیٹ ہینس مائٹ. اب دیکھیں اس سیکنڈ اسٹیٹمنٹ میں ہی جو ہے پہلے کا جواب موجود ہے، کیونکہ ہینرس جو ملر تھا وہ لٹل ہینس کو جو ہے ونٹر میں انوائٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ہی مائٹ اسٹیل دیئر تھنگس، وہ اس کی چیزیں چوری کر لے گا. بی میں ہے اوور اسٹے، یا زیادہ بیٹھ جائے گا. نمبر سی آسک فار فلور آن کریڈٹ اینڈ ڈی بیکم برڈن، یا برڈن بن جائے گا، یا جو ہے آٹا کہے گا کہ وہ اس کو ادھار پہ دیں. تو یہ چار چیزیں. تو اصل میں جو اس کو خدشہ تھا وہ زیادہ تھا اس کا کہ وہ اسے آٹا مانگے گا، کیونکہ وہ ونٹر میں جو ہے بہت زیادہ تکالیف محسوس کرتا تھا، تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. تو اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ یہ اسی وجہ سے جو ہے اسے ونٹر میں اپنے پاس نہیں بلانا چاہتا تھا. تھرڈ اسٹیٹمنٹ ہے ملرس وائف واز ویری کائنڈ لیڈی. ملر کی وائف جو ہے بہت ہی رحم دل عورت تھی. بالکل غلط ہے. کرٹیکل آف ہر ہسبینڈ، وہ اپنے ہسبینڈ پہ تنقید کیا کرتی تھی، یا اس کا مطلب جو ہے اس کو صحیح راہ دکھایا کرتی تھی، صحیح تجزیہ اس کا کرتی تھی، لیکن یہ بھی غلط ہے. اور سیلفش لائک ہسبینڈ کی طرف خود غرض تھی. بالکل یہ درست ہے، کیونکہ یہ ہسبینڈ کی طرح ہی خود غرض تھی. وہ بھی اس کے جو ہے ہینڈس کو ایکسپلائٹ کرنے میں اس کا ساتھ دیا کرتی تھی. آلویز بزی ان ہاؤس ہولڈ چورس، یعنی جو ہے گھر کے جو کام ہوتے ہیں، روٹین ورک ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ بزی ہوتی تھی. تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم نے لیسن میں نہیں پڑھا یا نہیں دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے بزی ہوتی ہو. نیکسٹ ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹ ہے ہینس وانٹیڈ ٹو سیل ہز پرمروزز ٹو ڈیش فلورسٹ. فلورسٹ کہتے ہیں جو فلاور وینڈر ہوتا ہے، جو پھول بیچنے والا، اس کو کہتے ہیں. بی برگو ماسٹرز ڈاٹر. برگو ماسٹر عام طور پہ جو یورپ میں خاص طور پہ جیسے نیدرلینڈ ہے یا جرمنی ہے یا آسٹریا، اس طرح کے جو بڑے ممالک ہیں وہاں کے، اس میں موسٹلی جو ہے کافی وقت پہلے اسپیشلی ان دا 18th and 19th centuries یا ایون بیفور، ان کے جو شہر ہوتے تھے، سٹیز وہ ہوتے تھے یا ٹاؤنس ہوتے تھے، ان کے جو خاص طور میئر یا ان کی چیف آفیسر جو تھے ان کو برگو ماسٹر کہا جاتا تھا. تو ان کی بیٹی کو جو ہے وہ پھول جو ہے بیچنا چاہتا تھا. بالکل درست ہے، یہ ہماری اسٹیٹمنٹ میں یہی آپشن آئے گا، کیونکہ وہ اچھے پیسے جو ہے اسے آفر کرتے تھے، کیونکہ وہ امیر لوگ تھے، اس وجہ سے اس کو کافی فائدہ ہوتا تھا. سی ہے ملرس وائف کو جو ہے وہ بیچنا چاہتا تھا. بالکل غلط ہے. ڈی ہے ڈاکٹر کو بیچنا چاہتا تھا. یہ بھی آپشن جو ہے غلط ہے. تو یہ ہمارا درست آپشن جو ہے یہ ہے.
नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ स्टेटमेंट, मिलर्स व्हील बैरो वाज इन डैश कंडीशंस। अब देखिए इसमें हमारे पास चार जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्रोकन कंडीशंस, ए, बी परफेक्ट कंडीशंस, सी स्लाइटली डैमेज कंडीशंस, इन डी अनयूज्ड कंडीशंस। अब हमें जो है लेसन में बताया गया है, जब हम पढ़ते हैं या हम सुनते हैं तो उसमें कहा जाता है कि उसका जो है व्हील जो है वो ख़राब है और टूटा हुआ है, और उसके अलावा उसके पोक्स जो है वो भी जो है वो मतलब ख़राब है या ख़त्म है। तो इसका मतलब है कि इट इज़ ब्रोकन। ये इस तरह नहीं कहेंगे कि वो स्लाइटली डैमेज है या जो है अनयूज्ड हालत में है या परफेक्ट हालत में है, ये बिल्कुल जो है गलत है। अच्छा, तो हमने देखा कि व्हील बैरो है क्या असल में, इसमें भी जो है हमें देखना चाहिए। तो ये देखें कि मैंने इसकी एक छोटी सी तस्वीर भी जो है यहाँ पे रखी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये असल में बुनियादी तौर जो है व्हील बैरो है। ये इसमें एक व्हील होता है और आम तौर पे जो मज़दूर हैं या जो गार्डनर्स हैं उसमें जो है पौधे वगैरह जो है वो उठा के जो है एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं या इवन बेचने के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। तो दूसरी जो इसकी तस्वीर है वो हमारे पास इस तरह है। ये देखें कि ये एक तस्वीराती तस्वीर है कि इसमें जो है फूल जो है रख के जो है किसी मज़दूर ने या किसी गार्डनर ने रखे हुए हैं और इसके साथ बेलचा भी है। तो ये असल में व्हील बैरो है। The next statement is Miller asked Hans to do all the chores except। हम पहले पढ़ के आए हैं हाउस होल्ड चोर्स का मतलब जो है रूटीन वर्क्स होते हैं जो घर के होते हैं, आमतौर पे जो और भी हो सकते हैं। यानी मिलर कहता था हैंस को सारे काम करने के लिए सिवाय एक काम के, इनमें से ये जो ऑप्शन है इनमें से सिर्फ एक जो ऑप्शन है उसके लिए उसे नहीं कहता था। अब हम पढ़ते हैं, ए कैरी सैक ऑफ फ्लोर, सैक बोरी को कहते हैं, ऑफ फ्लोर मान लो आटा, तो ये बिल्कुल उसे कहता था है। और दूसरा जो हमारे पास है गैदर वुड फॉर किचन फायर, ये हमें नहीं मिलता लेसन में कि वो उसे कहे कि लकड़ियाँ जो है वो जमा करके लाए किचन के लिए, किचन फायर के लिए। तो ये हमारा असल में जवाब है, ये इसमें दुरुस्त है। बाकी सारे कामों के लिए उसे कहता था ग्रेज शीप इन द माउंटेन, मतलब पहाड़ों पे ले जाए उनकी जो शीप हैं, स्पेशली जो भेड़ें हैं। और डी मेन द रूफ ऑफ बार्न, जो गले की जो वहाँ पे गोदी है उसको यानी मेंट करना, मरम्मत करना उसकी, तो उसके लिए उसे कहता था बिल्कुल मेंट मरम्मत करना। और बार्न जो है गोदी कहा जाता है जिसमें गला वगैरह रखा जाता है, सारी चीज़ें रखी जाती हैं, ख़ास तौर पे जो है अनाज रखा जाता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट 7 स्टेटमेंट जो है, दिस इज़ इन अ स्टॉर्मी नाइट मिलर केम टू हैंस टू डैश फॉर इंजर्ड सन। तूफ़ानी रात में मिलर आया हैंस के पास, किस वजह से, फॉर इंजर्ड सन, कि वो क्या करे, टू ब्रिंग डॉक्टर। ये हमारा 20 का असल में जवाब है, वो डॉक्टर को ले आने के लिए ही उसे कहता है। दिस इज़ द लास्ट इंसिडेंट इन विच एक्चुअली हैंस डाइड, जिसमें हैंस जो है अपनी जान जो है गंवा देता है। तो दिस इज़ आवर ट्रू ऑप्शन। फैच मेडिसन, फैच ले आने को कहते हैं, मेडिसन यानी दवाई ले आना, ये नहीं है हमारे उस ऑप्शन में। अरेंज एम्बुलेंस, एम्बुलेंस जो है का बंदोबस्त करना, ये भी हमारे उसमें नहीं है। कुक फूड, खाना पकाना, ये भी उसमें नहीं है। तो ये हमारा दुरुस्त जवाब जो है ब्रिंग डॉक्टर है। नंबर 8, हैंस डाइड बिकॉज ऑफ, हैंस क्यों मरा, ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि वो डॉक्टर लेने के लिए गया था और बाद में गड्ढे में गिरकर जो है मर गया। बिकॉज देयर वाज अ स्टॉर्मी नाइट, इस वजह से, और बरसात भी थी तो उसका पैर स्लिप हुआ। लिहाजा ये हम पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस, हिज ओन केयरलेसनेस, अपनी गफलत से, बिल्कुल गलत है।
बी नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की जो है नाअहली से या गफलत से, ये भी गलत है क्योंकि ये किसी अस्पताल में ये दाखिल नहीं था या किसी के पास नहीं गया इलाज के लिए। नंबर सी है ट्रिप ऑफ गोट हार्ट, यानी वो उसको रास्ते में जो बकरार थे या चरवाहे थे उन्होंने जो है ट्रैप कर लिया था, पकड़ लिया था और उसको मार दिया था, बिल्कुल ये भी गलत है। और सेल्फिशनेस ऑफ मिलर, ये डी ऑप्शन है कि मिलर की जो है खुदगर्जी से, तो बिल्कुल ये दुरुस्त जवाब है हमारा, ये मिलर की खुदगर्जी की वजह से ही जो है अपनी जान गंवा बैठा। नंबर 9, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है। इसमें हमें एक स्टेटमेंट कही जा रही है, बिकॉज ये देखिए इस तरह का सवाल है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, यानी ये सारी स्टेटमेंट्स है, इनमें से इज़ ट्रू, कौन सी ट्रू है, विच कौन सी ट्रू है। इसमें पहला है मिलर वाज रियली अ सिंसियर फ्रेंड, मिलर बिल्कुल ही जो है सच्चा दोस्त था, बिल्कुल गलत है, मिलर उसका सच्चा दोस्त नहीं था, वो खुदगर्ज दोस्त था। बी हैंस वाज टेम्प्टेड बाय मिलर्स व्हील बैरो, हैंस जो था वो मिलर के व्हील बैरो पे वो अट्रैक्ट हो गया था, उसकी तरफ जो है माइल हो गया था, बिल्कुल ये भी गलत है कि उसके व्हील बैरो की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ था। दो व्हील बैरो जो है वाज प्रोमिस्ड बाय द मिलर कि मैं उस आपको दूंगा, लेकिन उसे उसने दी नहीं, ये बात भी नहीं थी, उसके मरने का ये सबब भी नहीं था। तो हम कहेंगे कि टेम्प्टेड की माना जो है अंग्रेज़ी में ल्योर्ड, अट्रैक्टेड टू समथिंग और सम पर्सन अनवाइजली, रादर वी कैन से, मतलब किसी इस ऐसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना लेकिन पता हो कि ये इसमें नुकसान है या ये इसमें लालच है, तो इस तरह के जो वर्ब है उसको हम टेम्प्ट कहते हैं। तो यहाँ पे टेम्प्टेड इस्तेमाल किया गया है, किसी भी लालच में नहीं आया हुआ था, ना ही अट्रैक्ट हुआ था किसी गलत तरीके से। तो नंबर सी है मिलर एक्सप्लॉइटेड हैंस फॉर हिज ओन सेल्फिश मोटिव, बिल्कुल ये दुरुस्त है कि मिलर ने जो है एक्सप्लॉइट किया हुआ था अपने खुद गर्जाना रीज़न्स के लिए, मोटिव्स के लिए, मकासद के लिए। मोटिव्स की माना जो है मकासद हम लिख सकते हैं, और रीज़न्स वजह के लिए भी हम कह सकते हैं, वजह भी हम कह सकते हैं मोटिव की माना। और एक्सप्लॉइट का मतलब है इस्तेमाल करना किसी चीज़ को, किसी आदमी को अपने किसी मकसद के लिए, ठीक है। तो ये मोटिव्स तो पहले दिया हुआ है, अदरवाइज़ एक्सप्लॉइट के अंदर ही जो है ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिस चीज़ को आप जो है एक्सप्लॉइट करते हैं या जिस चीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं या जिस चीज़ से आप फ़ायदा लेते हैं, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए ही ये वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट। तो बिल्कुल ये दुरुस्त है कि मिलर जो है उसने इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए, फ़ायदे के लिए, किसको, लिटिल हैंस को। डी है हमारे पास, हैंस न्यू द ट्रू नेचर ऑफ द मिलर, मिलर की असल हकीकत या नेचर, फितरत का उसे पता था, बिल्कुल गलत है, बिकॉज हैंस वाज सो सिंपल, सो इनोसेंट दैट ही एक्चुअली डिडंट नो the nature of Miller. He actually thought that he was his friend, his best friend. So he did what actually he had been asked by his heart. यानी वो अपने दिल से ही जो है उसके काम करता था, क्योंकि मिलर को वो अच्छा दोस्त समझता था। Anyhow, नेक्स्ट नंबर 10 स्टेटमेंट है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट, अब मॉरल जो स्टोरी का है वो क्या है कि वन शुड सेक्रीफाइस वंस लाइफ फॉर फ्रेंड्स, दोस्तों पे जो है आदमी को अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देनी चाहिए। वन साइडेड फ्रेंडशिप इज़ डैमेजिंग, एक सरफा दोस्ती जो है वो नुकसानदेह है। वन शुड नॉट ट्रस्ट फ्रेंड्स, किसी को अपने दोस्त पे जो है एतबार नहीं करना चाहिए।
नंबर डी, वन शुड नॉट प्रॉमिस एनीथिंग टू फ्रेंड्स, किसी को अपने दोस्त के से वायदा किसी भी चीज़ के बारे में नहीं करना चाहिए. व्हाट इज़ योर आंसर डियर स्टूडेंट्स? आप खुद सोचें कि आपका इनमें से कौन सा जवाब हो सकता है. देखें कि ये कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं, जैसे मिसाल किसी को कुर्बानी जो है वो देनी चाहिए दोस्त पे, बिल्कुल ये भी दुरुस्त है, देनी चाहिए, ठीक है. लेकिन कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है, जो मॉरल है, जो मेन मकसद है, वो क्या है जिस पे ज़्यादा एम्फेसिस है. तो ये नहीं है कि किसी को, जैसे मिसाल लिटिल हैंड्स ने कुर्बानी दी, तो इसका मतलब जो है क्या आप उसको दुरुस्त समझते हैं? मेरा ख्याल है हम उसको दुरुस्त नहीं समझते, ठीक है. दूसरा है कि एक साइडेड फ्रेंडशिप इज़ डैमेजिंग. एक साइडेड जो दोस्ती है वो डैमेजिंग, नुकसान कर रहा है. अब देखें कि इसमें हमारी कहानी में बुनियादी जो नुक्ता है वो यही है कि इसमें एक साइडेड फ्रेंडशिप है. जो सारे मतलब जिस वजह से लिटिल हैंड्स तकलीफ़ में है, जितनी भी तकलीफ़ें वो भुगता है, वो बिकॉज ऑफ द मिलर्स ग्रीड और मिलर्स सेल्फिशनेस. क्योंकि मिलर रिटर्न में उसे कुछ भी नहीं देता, मिलर उसे किसी भी काम नहीं आता, बल्कि वो सारे काम उससे लेता है. तो सिर्फ एक ही साइडेड दोस्ती, यानी वो उससे डिमांड करता है दोस्ती की, बल्कि ख़ुद जो है वो दोस्ती का हक़ नहीं निभाता. तो ये वन साइडेड है दोस्ती. तो इसी वजह से ही जो है लिटिल हैंड्स ने जो है अपनी ज़िंदगी गंवा दी, बिकॉज़ उसे आखिर में आपने देखा जिस सीन में उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी तूफ़ान में, तो उसे जो लैंटर्न थी वो भी नहीं दी, उसे बत्ती भी नहीं दी कि वो रोशनी करके जो है वो कम से कम रास्ता तो देख सकता, लेकिन मिलर ने उसे वो भी नहीं दी. तो ये जवाब जो है हमारा बिल्कुल दुरुस्त है कि स्टोरी का जो मॉरल है इस हवाले से ये हो सकता है, क्योंकि मॉरल और भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली हमें ऑप्शंस में दिया गया है तो ये उसके बहुत करीब है. वन शुड नॉट ट्रस्ट फ्रेंड्स, ये भी गलत है कि दोस्तों पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कहानी का सेंट्रल नुक्ता नहीं है. वन शुड नॉट प्रॉमिस एनीथिंग टू फ्रेंड, दोस्त किसी को दोस्तों पे से जो है वो प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है. वैसे करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हमारी इस स्टोरी का जो है बुनियादी नुक्ता नहीं है. तो यही हमारा जो है इसमें स्टेटमेंट में से ट्रू जो स्टेटमेंट ऑप्शन है वो यही है. तो ये एक्सरसाइज इसके साथ हम कंप्लीट करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर watching. Please subscribe the channel for the next video. Thank you.